गुजरात के सूरत से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें फीस न भरने की वजह से छात्रा ने आत्महत्या कर ली। गुजरात के सूरत से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। गोडादरा क्षेत्र में आदर्श पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाली 8वीं कक्षा की छात्रा ने आत्महत्या कर ली। छात्रा पर स्कूल प्रबंधन द्वारा फीस न भरने के कारण मानसिक दबाव बनाया गया था। परिवार का आरोप है कि फीस न भरने के कारण छात्रा को स्कूल प्रबंधन ने बार बार प्रताड़ित किया। पिछले 2 दिनों में छात्रा को टॉयलेट के पास खड़ा रहने के लिए मजबूर किया गया। इससे पहले भी कई बार उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया था। इन सब के चलते छात्रा मानसिक तनाव में आ गई और आखिरकार आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठा लिया। घटना में एवं है कि बेबी में एग्जाम नहीं आपवा दीधी थी मारी बेबी ने એને બહાર ઊભી રાખી ક્લાસમાં અને ઘરે આવીને રડતી હતી। એ પછી અમે ફોન કર્યો સરને। મેં કીધું છોકરીને હું કામ ફીસ બાકી હતી એની, મેં કીધું આવતા મહિને ભરી દેવા હું। તો પછી એને સ્કૂલ મોકલવાની તો સ્કૂલ જતી નથી હતી, એ કે મારે સ્કૂલ જવું નથી કે પછી ત્યાર પછી એક દિવસ ગઈ હતી સ્કૂલ, પાછી 4-5 દિવસ ગઈ નથી। તો રાતે એને 6-6:30 વાગે આવું કરી દીધું। અમે બધા જો કામ પર હતા। મારી એ જ માંગ છે કે બીજી ડિગ્રી હાથે આવું નહીં થાય, પેરેન્ટ્સ સાથે આવું અને બીજી કોઈની બેટી એના હાથમાંથી નહીં જાય બસ। गुजरात के अरवली में बाईपास निर्माण के चलते ग्रामीणों द्वारा विरोध किया जा रहा है। गुजरात के अरवली जिले के भिलोड़ा तालुका में लीलछा, खलवाड़ और मोहनपुर गांव के ग्रामीणों ने बाईपास निर्माण के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आदिवासी समुदाय अपनी जमीन बचाने के लिए सड़कों पर उतर आया है। भिलोड़ा के लीलछा, खलवाड़ और मोहनपुर गांव में बाईपास निर्माण को लेकर भारी विरोध हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि बाईपास निर्माण से उनकी कीमती आदिवासी जमीन को नुकसान होगा। इन तीनों गांवों के लोगों ने मिलकर बाईपास के खिलाफ नारेबाजी की और अपना विरोध दर्ज कराया। ग्रामीणों का आरोप है कि विकास के नाम पर उनकी जमीन छीनी जा रही है। हमें हमारा खलवाड़, લીલછા અને મોહનપુર થઈને જે બાયપાસ રોડ 168G સરકારનો જે આવી રહ્યો છે એની સામે અમે સખ્ત વિરોધ નોંધાવેલો છે અને અમે મામલતદારશ્રી, કલેક્ટરશ્રી અને સરકારશ્રીમાં વારંવાર રજૂઆતો કરી છે અને જ્યાં હાલમાં હયાત રોડ છે ત્યાં બાયપાસના બદલે હયાત રોડ છે ત્યાં ઉપર થઈ અને રોડ આવી શકે તેમ છે। તેમ છતાં પણ સરકાર આદિવાસીઓની જમીન ગેરકાયદેસર રીતે હડપી લેવા માટેના પ્રયત્નો કરી રહેલ છે। ખરેખર એની સામે સખત અમને વિરોધ છે અને બીજું કે આ વિસ્તાર 5મી અનુસૂચિત વિસ્તારમાં આવે છે। બંધારણમાં એના માટે સ્પેશિયલ જોગવાઈ કરવામાં આવી છે અને રૂઢિગત ગ્રામસભા જ્યાં સ્થાનિક લેવલે हयात होय ત્યાં એની મંજૂરી લેવાની હોય। वडोदरा में विश्वामित्री परियोजना और आगामी बजट को लेकर वडोदरा महानगर पालिका में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 59 इंजीनियरों की भर्ती की जानकारी दी गई, जो महानगर पालिका की विभिन्न परियोजना पर काम करेंगे। इन इंजीनियरों को विशेष रूप से विश्वामित्री परियोजना के बारे में जानकारी दी गई है, ताकि परियोजना से जुड़ी सभी गतिविधियां सही तरीके से चल सके। इसके साथ ही महानगर पालिका द्वारा आगामी बजट के संबंध में भी चर्चा की गई। इस बजट के लिए नागरिकों से सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। अब तक 350 से अधिक सुझाव प्राप्त हो चुके हैं और ये सुझाव लगातार आ रहे हैं। आज कॉर्पोरेशन में जे एडिशनल एंजीनियर અને આસિસ્ટન્ટ એડિશનલ એન્જિનિયર જે ઇજનેરોની ભરતી થઈ હતી એમનું ટ્રેનિંગ સેશન જેવું રાખવામાં આવ્યું હતું। કોર્પોરેશનના વિવિધ પ્રોજેક્ટ, વિવિધ કામગીરી, કોર્પોરેશનના બધા ઝોન, વોર્ડ એનાથી અમને અવગત કરાવવામાં આવ્યા હતા। સાથોસાથ એક અમે વિશ્વામિત્રી જે નદીનું ડિસિલ્ટિંગ કરવાનું છે એના આગોતરા પ્લાનિંગની પણ એક મિટિંગ અત્યારે બધા એન્જિનિયર્સ જોડે થઈ છે। એ ઉપરાંત વિવિધ ઝોન કક્ષાએ પણ જે પણ કાચ સફાઈ કરવાની છે, કાચે પોળી કરવાની છે, ઊંડી કરવાની છે, એનું રિસેક્શનિંગ કરવાનું છે, એ દરેકે દરેક ઝોનના એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયર સાથે એનું પણ પ્લાનિંગ થયું છે। જે વિશ્વામિત્રી નદીને ડિસિલ્ટિંગ માટેની જે રેમ્પની જે કામગીરી ગતિમાં છે એનો પણ રિવ્યૂ થયો છે। એટલે સમગ્ર રીતે દરેકે દરેક પાસા જે વિશ્વામિત્રી નદી અને અન્ય જે ઝોન વાઇઝ કામ કરવાના છે એની માટેનું માઇક્રો પ્લાન આજે તૈયાર થયો છે અને બજેટની મિટિંગ પણ અમે અત્યારે લઈ રહ્યા છીએ, જેમાં જે બજેટ આગામી સમયમાં આવવાનું છે એની માટે થઈને એના ચાલુ કામો, આગામી આયોજન જોડે જોડે જેટલું રિવાઇઝ બજેટ જે અમે કરવાના છીએ એની પણ અત્યારે એક ચર્ચા છે। गुजरात के अमरेली में सामाजिक नेता नाथालाल सुखड़िया ने अर्धनग्न विरोध प्रदर्शन किया।
अमरेली में सामाजिक नेता नाथालाल सुखड़िया ने गोचर भूमि पर अतिक्रमण को लेकर एक विरोध प्रदर्शन किया। नाथालाल सुखड़िया ने पूर्व सांसद नारायण काछड़िया पर गोचर भूमि में अतिक्रमण कर बगीचा बनाने का आरोप लगाया है। इस विरोध के दौरान उन्होंने कलेक्टर से लिखित रूप में अतिक्रमण हटाने की मांग की। साथ ही उन्होंने महुआ जेतपुर नेशनल हाईवे पर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं की भी जांच की मांग की। अमरेलीना प्रतिनिधि जे रही चूक्या है 3 टर्म सुधी नारायण काछड़ियाभाई, तो एमनी सामे 2020 मारी रजूआत हती के आना बंगलो आव्यो छे सर्वे नंबर 503 नी अंदर अने एने लागू जमीन गौसરની जमीन 334 पैकी 5 માં તેઓએ દબાણ કર્યું છે અને દબાણ હટાવવા માટે નામદાર હાઈકોર્ટે 39/2020 ના આદેશથી કોર્ટે હુકમ કરેલો હતો કે આ દબાણ દૂર કરવું, પણ અત્યાર સુધી માત્ર કાગળ ઉપર દબાણ દૂર થયું છે। વાસ્તવિક રૂપે ત્યાં મીડિયાના લોકોને આપણે જઈએ તો ત્યાં આંબા રાવણા જેવા ફળાવ ઝાડ છે ને સિઝનલ ઝાડની અંદર જ્યારે ફળો આવે ત્યારે આજુબાજુના નાના બાળકને પણ અડવા દેતા નથી। માત્ર નારાયણભાઈ કાછડિયાના બંગલામાંથી આ આંબાની કેરી એ પરિવાર ખાય છે, એ રાવણા ખાય છે। એની સામે મારો વિરોધ હતો કે આ અમરેલીના નાગરિક નાનામાં નાનો માણસ એ આંબાના ફળ ખાય આવતી સિઝનમાં, એ માટે દબાણ હટાવવા માટેનો મારો પ્રશ્ન હતો। બીજો પ્રશ્ન, ગૌચરની જમીન 334 પૈકી 5માં 5544 મેટ્રિક ટન માટીનું ખનન થયું અને પ્રૂફ થઈ ગયું ગૌચરની અંદરથી ખોદાણું, અને ખોદાયેલી માટી એક રોડના કોન્ટ્રાક્ટર કે જેના સાંસદના પૌત્રના નામે એજન્સીના એ એન્જિનિયર છે એમના મારફતે 5544 મેટ્રિક ટન માટી એટલે કે વર્તમાન બજાર કિંમત મુજબ એ લોકોને 53 લાખનો દંડ થવો જોઈએ, એની જગ્યાએ 13 લાખનો દંડ આ ગૌચરની માટી માટે સાદી ગણી કર્યો। તો એ રજૂઆત હતી। 351 નેશનલ હાઈવે જે જેતપુર મહુવા બની રહ્યો છે, જેની અંદર મારા ગામની અંદર બાયપાસ મારા ગામને કરવામાં આવ્યું છે। મારા ગામની અંદર આનો આ રોડ મોટો થાય તો ગામના કોઈ લોકોને વાંધો નથી, અને જે જગ્યાએ રોડ બાયપાસ કરે છે ત્યાં ખેડૂતોની ફળદ્રુપ જમીન કપાઈ રહી છે અને ખેડૂત બેરોજગાર બનવા જઈ રહ્યો છે, એને અટકાવવા માટે અમારા પ્રયત્નો છે। અને અગાઉ અમે બધા કલેક્ટરનેથી માંડી અને બધા અધિકારીઓને રાજકીય આગેવાનોને અમે આવેદનપત્રો આપેલા છે કે જે રોડ અમારો અમરેલી સાવરકુંડલા ચાલુ છે એ રોડ મોટો થાય તો અમને કાંઈ વાંધો નથી, અને ખેડૂતોની ફળદ્રુપ જમીન નષ્ટ થતી રોકાય અને ખેડૂતો ખેતી કરી શકે એવી અમારી કલેક્ટરશ્રીને પણ ભલામણ છે। Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994। टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out.
पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। गुजरात के वडोदरा के हरणी के ब्राइट डे स्कूल सीबीएसई यूनिट का वार्षिक खेल महोत्सव आनंद पूर्वक वातावरण में संपन्न हुआ। गुजरात के हरणी के ब्राइट डे स्कूल सीबीएसई यूनिट के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व क्रिकेटर नयन मोंगिया उपस्थित रहे। स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर सीमित शाह और मुख्य अतिथि ने गुब्बारे उड़ाकर खेल महोत्सव का शुभारंभ किया। छात्रों ने विभिन्न हाउस की परेड प्रस्तुत की और फ्लैग ड्रिल, लेजिम ड्रिल, रिंग ड्रिल, कराटे, पिरामिड और लाठी जैसे आकर्षक प्रदर्शन किए। छात्रों ने दौड़, बकेट और बॉल बैलेंसिंग रेस, पोटैटो रेस और जिगजैग रेस जैसी विभिन्न खेल गतिविधियों में भाग लिया। विजेता छात्रों को स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर सीमित शाह, मुख्य अतिथि नयन मोंगिया, डायरेक्टर स्वराज शाह और प्रधानाचार्य नीता शर्मा के हाथों पुरस्कार प्रदान किए गए। इन सब बच्चों को और ये जो खेल दौड़ देखकर मुझे मेरे बचपन की याद आ गई, जब हम भी स्कूल में हुआ करते थे। पर मैं खास करके ऐसे स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेट ना करके मैं अपनी प्रैक्टिस करने चला जाता था, मुझे याद है। और हमारे जो पीटी टीचर थे वो हमें बुलाते थे, पर उनको समझ में आ गया था कि भाई ये सिर्फ क्रिकेट खेलना जानता है, तो मुझे अलाउ करते थे। पर इससे स्पोर्ट्स डे से काफ़ी कुछ कॉन्फिडेंस आता है, बच्चों को डिसिप्लिन आती है और ये सभी बच्चों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। एनुअल स्पोर्ट्स मीट रखा गया था। स्टैंडर्ड 5th to 9th का ये एनुअल स्पोर्ट्स डे था, जिसमें कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पे श्री नयन मोंगिया, फॉर्मर क्रिकेटर, उपस्थित रहे थे। उन्होंने बच्चों को बहुत प्रोत्साहित किया और आज स्पोर्ट्स मीट जो हुआ उसके अंदर ओट टेकिंग सेरेमनी, मार्च पास्ट और रिलीजिंग ऑफ द बलून हुआ। उसके बाद 5-6 किस्म की डिफरेंट ड्रिल्स प्रस्तुत की बच्चों ने, जो बहुत ही अच्छी रिदम में और बहुत सिंक्रोनाइजेशन में थी। और उसके बाद स्पोर्ट्स इवेंट का मुहूर्त हुआ, जिसमें बच्चों जो विन होते हैं अलग अलग कंपटीशन में, उनको मेडल्स देते नवाजा गया है। गुजरात के वडोदरा में एक खास फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें LGBTQIA+ समुदाय पर विभिन्न फिल्में प्रस्तुत की गई। वडोदरा में विकल्प वुमेन्स ग्रुप द्वारा बड़ोड़ा क्वियर फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में LGBTQIA+ समुदाय की आवाज को सिनेमा के माध्यम से उजागर किया गया। ये केवल एक फिल्म फेस्टिवल नहीं, बल्कि संवाद, समावेशिता और विविधता का उत्सव मनाने के लिए एक मंच है। इस कार्यक्रम के जरिए सिनेमा के माध्यम से क्वियर जीवन की खुशियां और संघर्षों को बारीकी से दर्शाया गया। फिल्म फेस्टिवल में कई अनोखी और विचारोत्तेजक फिल्में प्रदर्शित की गई। फिल्म एक बहुत महत्वपूर्ण कला का रूप है, जिसके जरिए हम सब बड़े समाज तक पहुंच सकते हैं
और जब समाज को अगर प्रभाव डालना है तो कला एक अच्छा तरीका है कि हम लोगों तक पहुंच सके। और क्वेयर लोग क्योंकि समाज के हाशिए पे रहते हैं तो उनको अगर शामिल करना हो तो कला एक अच्छा ढंग है लोगों तक पहुंच पाना। और जो दिक्कतें होती हम सब अगर आपस में बैठ के समझ सकें और उससे सहृदयता भी आती है। तो हम लोगों ने इसलिए फिल्मों का त्योहार एक तरह से रखा है ताकि सब लोग उसमें शामिल हों और हमारी परिस्थितियां बराबरी के स्तर पे आ जाएं। बहुत लोगों ने करा है, 100 से ऊपर के लोग हॉल में हैं और सब आनंद ले रहे हैं फिल्मों का। आई एम वेरी हैप्पी कि विकल्प जैसे इतने अमेजिंग ऑर्गेनाइजेशन ने बूथ को यहाँ पे बड़ौदा में स्क्रीन किया एंड मुझे इनवाइट किया एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू आंसर क्वेश्चंस जो भी ऑडियंस के यहाँ पे होंगे फिल्म को देखने के बाद। समानता नहीं है एंड मुझे लगता है वो अभी भी एक लंबा रास्ता है जो तय करना पड़ेगा, लेकिन जैसे कहते हैं कि धीरे धीरे पत्थर भर के घड़ा पूरा होता है, तो उम्मीद है कि आज नहीं तो कल वो समानता जरूर आएगी। छत्तीसगढ़ में सेना ने 20 नक्सलियों का एनकाउंटर करते हुए नक्सलियों को ढेर करने में बड़ी सफलता हासिल की है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में फोर्स ने 20 नक्सलियों का एनकाउंटर कर दिया है। इनमें से 15 के शव और हथियार मिल चुके हैं। इनमें 1 करोड़ का इनामी जयराम उर्फ चलपति भी मारा गया है। रविवार की रात ये मुठभेड़ शुरू हुई। मंगलवार की सुबह नक्सलियों को मारने की बड़ी खबर सामने आई। मुठभेड़ अभी खत्म नहीं हुई है। जवानों की कामयाबी पर केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा कि देश में नक्सलवाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर पर स्थित भालू डिग्गी के जंगल में 1000 जवानों ने करीब 60 नक्सलियों को घेर रखा है। बैकअप पार्टी भेजी गई है और ड्रोन से नजर रखी जा रही है। पहले फोर्स का 15-20 किलोमीटर का घेरा था, अब नक्सली 3 किलोमीटर में सिमट गए हैं। सभी 60 नक्सलियों के मारे जाने की संभावना है। वहीं एक जवान घायल हुआ है जिसे एयरलिफ्ट करके रायपुर लाया गया। एसओजी जवान के पैर में गोली लगी है।